about the communication in the palliative care. Can anybody know about the communication? Why it's important in the palliative care? Anybody from audience? Okay, before we going to start, I will give a case study or case scenario so you can understand the why the communication is important in our palliative care. So you know, or you have an idea about that. The communication is a process, which is uh, a process. The message we can share from you or our audience to learner or the recipient. So I'll give you a case study in a participant. Anybody can read it voluntarily. Then we will discuss about this. Hello. Yes, sir. I'll read. Okay. Mrs. K is a 34-year-old teacher who has been diagnosed with breast cancer with mets. Her biopsy report has been sent. Her husband has checked with the lab, some idea about the diagnosis. He enters your room and asks you to tell her anything about illness. Mrs. K, young children, 10 and 6 years old. Her husband feels that she only be devastated about the result and will not be able to handle it. He wants to inform her brothers about it. Okay, all audience got it. The what is the scenario is saying, and why the communication is important in our palliative care. Okay, we will discuss it's in a later after the discussion of the whole communication part. Okay, now we will discuss about the palliative care communication. Okay. Why I cannot see the heading? Hello, am I audible? Yes, yes, sir. There is a problem. But we can see the screen objectives. Okay, okay, objectives. So in this session or talk, our objectives, I will not share the my objectives, because you know the communication is not a one-way process. You got it? The communication is a two-way. When we will discuss about the two-way communication, it will be a very good for us. So today our objectives will be demonstrate the aspect of the excellent communication in the palliative care, understand type of the communication, or the identify the factor that influence the communication in the palliative care setting, or the myth in the communication in the palliative care and how to address them, or we will discuss about the steps of the good communication. Okay, these are our objectives. We are trying to achieve all these objectives in next few minutes. The why the communication is or how the communication is important. Okay, the communication is a process. So you can know, is the Hindi is comfortable all for you? Yes, yes, it's clearly visible. Okay. Yes, sir. So एज वी नो, और आप सबको पता है कि कम्युनिकेशन के माध्यम से हम एक दूसरे की बात को आपके थ्रू ऑडियंस से या ऑडियंस की आपके थ्रू पहुंचा सकते हैं. तो उसके लिए एक सिंपल सा फंडा है कि एक मैसेज जो है वो किसी मोड के माध्यम से रिसीवर के द्वारा पहुंचाया जाता है. तो वो एक क्या है, कम्युनिकेशन प्रोसेस है. उसमें कई तरह के चैनल्स यूज में लिए जाते हैं. तो ये एक तरह का प्रोसेस है. अब वो किस किस तरीके से अफेक्ट होता है और किस तरीके से हम उसको अच्छा और बेहतर बना सकते हैं, वो सारी चीजें अपन इसमें डिस्कस करेंगे.
और इसके अलावा इंफॉर्मेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग। तो जो भी इंफॉर्मेशन जो होती है, जो अपन पेशेंट या उसके केयर गिवर या रिलेटिव्स के माध्यम से हम लोग कलेक्ट करते हैं, या फिर आपको सारी इंफॉर्मेशन जो पता है, जैसे आप एक हेल्थ पर्सोनल्स हैं और आपको उसके बैकग्राउंड के बारे में पता है, तो वो उस पेशेंट को या केयर गिवर को डिसीजन लेने में किस तरीके से आप उसको हेल्प करते हैं। तो ये सारी चीजें करने के लिए एक अच्छा कम्युनिकेटर आपको बनना चाहिए। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप उस पेशेंट के लिए एक अच्छा डिसीजन लेने में या उसको एक बेहतर डिसीजन देने में उसकी मदद कर सकते हैं। तो इसलिए कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा कई सारे मिथ्स जो होते हैं जो कम्युनिकेशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे आप देख रहे होंगे कई सारी अफवाहें उड़ जाती है मार्केट में, कि अपने कम्युनिटी में ही देख लेते हैं, जैसे पैलिएटिव केयर का थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इन सब ऑडियंस को पता है ना, इंट्रोडक्शन अबाउट द पैलिएटिव केयर सब हो गया है ना? Yes, yes, sir. Yes, sir. Yesterday there was such. ओके। तो Yes, yes, sir. हाँ, कई सारे मिथ होते हैं, जैसे कोई पेशेंट होता है कि कैंसर या एक ऐसी बीमारी जो है वो एकदम से लाइलाज है, लेकिन ये एक दूसरे के साथ बैठने से भी दूसरे पेशेंट में ट्रांसमिट होती है। तो ये एक तरीके से मिथ होता है या अफवाह होती है जो कम्युनिकेशन को अपना जो है उसको अफेक्ट करता है। तो उनको अपन किस तरीके से उनको रिमूव कर सकते हैं, ये सारी चीजें अफेक्ट होती है कम्युनिकेशन के माध्यम से। ठीक है, तो उनको अपन किस तरीके से हटा सकते हैं वो नेक्स्ट फ्यू स्लाइड में आपको पता चलेगा। अगला जो अपना जो कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, नेक्स्ट पॉइंट है इंटर डिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन इज इम्पोर्टेंट। इंटर डिसिप्लिनरी से मतलब है कि दूसरे डिपार्टमेंट के लोग, जैसे अभी आप कोई ऑन्को सर्जरी में काम करते हैं, मान लीजिए मैं मेडिकल ऑन्को में काम करता हूँ, या कोई दूसरे न्यूरोलॉजी में डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो अपनी इंफॉर्मेशन उनके साथ में शेयर करने के लिए या उनकी जो इंफॉर्मेशन है आपको पता लगाने के लिए एक आपस में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच बहुत जरूरी है। तो उस कोलैबोरेशन के लिए अगर आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो सारी चीजें आप जो सही से इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीजें पता लगाने के लिए एक अच्छा कम्युनिकेशन होना जरूरी है। इसके अलावा फैमिली इज इम्पोर्टेंट। आपने देखा होगा कि पैलिएटिव केयर केवल पेशेंट को ही न देख करके अपन किसको एड्रेस करते हैं, कोई बता सकता है? पैलिएटिव केयर में किसको एड्रेस करते हैं आप में से कोई भी वॉलेंटियरली? Caretakers, और nearby relatives. वेरी गुड। तो अपन को पता है कि पेशेंट जो पैलिएटिव केयर न केवल उस पेशेंट के लिए है, रेदर देन वो उसका जो केयर गिवर है जो उसकी देखभाल करता है, साथ ही साथ में उसके जो फैमिली मेंबर हैं उन सबको अपने को एड्रेस करना चाहिए। तो इसलिए अगर आपको फैमिली मीटिंग करनी होती है तो वो भी इम्पोर्टेंट है कि आप उस फैमिली मीटिंग में किस तरीके से आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं। तो चाय जोड़ के लगे ये सारी चीजें आपको एक बेहतर कम्युनिकेशन बनाने के लिए जरूरी है। अब हम कम्युनिकेशन को और आगे पढ़ें उससे पहले एक ये जो आप इमेज देख रहे हैं उसको आप अच्छे से समझने की कोशिश करें, और उसके बाद में मैं एक आपको वीडियो शेयर करूंगा। देख रहे हैं आप ये जो एक ऑपरेशन थिएटर का सीन है, देख पा रहे हैं आप सब लोग, जिसमें 3 जने खड़े हैं यस सर। और वो बोल रहे हैं आपस में एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं। और जो टेबल पे लेटा हुआ पेशेंट है वो क्या हो जाता है, कोई बता सकता है क्या हो रहा है उसमें, इस पिक्चर में? देखो 3 जने जो हैं उस पेशेंट को शिफ्ट करने की ट्राई कर रहे हैं, लेकिन पेशेंट जो है उसके पांव जो हैं वो दिख रहे हैं, बाकी वाला बॉडी जो है वो कहाँ है, नीचे गिर गया है। अब आप समझ रहे होंगे कि 3 जने जो आपस में ये कोऑर्डिनेट कर रहे थे उनको अच्छे से आपस में कम्युनिकेशन नहीं किया गया, जिसकी वजह से एक पेशेंट को चोट लग सकती है या उसका जो और भी केयर है वो अफेक्ट हो सकती है। तो कम्युनिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है पेशेंट की
सेफ्टी के लिए। ठीक है, अब हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे जिसके अंदर हम लोग बताएंगे कि कम्युनिकेशन कैसे इंपॉर्टेंट है। क्या आप सभी को दिख रहा है? हेलो? No, sir. Not at visible. नहीं सर, नहीं? नहीं दिख रहा है। क्या सबको? किसी को यदि समझ में आया तो बता सकते हैं। हेलो Sir, at the ऑडियंस? right time, we have to use the right word and speak right thing to the people. Otherwise, everything will be lost. यस यस, यू कैन सी इन दिस वीडियो कि एक जो रैबिट था उसने लास्ट में क्या बताया, और सबसे पहले जो दो एनिमल थे वो बियर के पास जाते हैं। बाकी सब ऑडियंस के लिए मैं बता रहा हूँ कि उनके पास कोई लिस्ट ऐसी नहीं थी, लेकिन वो ऐसे ही अफवाह फैला दी जाती है या ऐसे ही बोलते हैं कि हर एक दिन हर एक जानवर का एक दिन नंबर आएगा और उसको खा लेंगे। लेकिन किसी ने भी उनसे ये नहीं पूछा कि उस लिस्ट में से मेरे को निकाल सकते हैं क्या। लेकिन जो रैबिट ने क्या किया, उसने बोला मैं उस लिस्ट में हूं। तब उसने बोला कि हाँ बिल्कुल हो लिस्ट में, तो मुझे उस लिस्ट में से बाहर निकाल सकते हैं। तो उसने बोला व्हाई नॉट। तो ऐसा करके उसने अपनी जान बचा ली। तो इससे ये साबित होता है कि हमेशा सही चीज जो है आपको बोलनी आनी चाहिए सही टाइम पे। अगर वो भी दोनों पहले एनिमल जो थे वो सही जगह पर बोल देते तो शायद उनकी भी जान बच जाती। सेम वैसा ही सीन जो है वो अभी पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इस टेबल पे इन तीनों के बीच में आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, उसकी वजह से उस टेबल से ये पेशेंट नीचे गिर जाता है। तो इस सीन से ये साबित होता है कि कम्युनिकेशन अपने हेल्थ प्रोफेशन में कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आपस में ये सारी चीजें जो अगर आप सही से कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो उससे नुकसान आपका भी है और साथ साथ में उस पेशेंट का और उसके केयर गिवर और उसकी फैमिली मेंबर का भी है। तो जब हम प्रिंसिपल कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं तो कुछ चीजें जो हैं अपने दिमाग में होनी चाहिए कि जैसे अपन पेशेंट से अगर अगर बात करते हैं तो आपका जो एटीट्यूड है वो कैसा होना चाहिए? नॉन जजमेंटल। अब नॉन जजमेंटल से रिलेटेड कोई एक एग्जांपल बता सकता है आप में से, वॉलेंटियर में से कोई भी? नॉन नॉन जजमेंटल से क्या मतलब है? कोई भी आप में से बता सकते हैं नॉन जजमेंटल होना क्या मतलब है? डॉक्टर साहब काफी बता रहे थे, उमेश जी, गुजर सर। हाँ सर, पहले से कोई तो अपने मन में धारणा पेशेंट के प्रति लेके फिर हम लोग पेशेंट को अप्रोच कर रहे हैं, जो पेशेंट के पास नहीं है लेकिन मेरी धारणा ऐसी है। ओके। और आप में से इसके अलावा और कोई भी प्रतिबाजी दिख रहे हैं? Having प्रतिबाजी। किसी तरीका बायस नहीं रखने का, धर्म जाति के प्रति ओपन माइंड से पेशेंट से बात करने की। ठीक है, और कोई आप में से बता सकते हैं? बायस नहीं होना। और I think it's also if koi, like if some patients might not know what the doctor is talking about, and then the doctor should patiently explain it to them instead of judging them for not knowing कि वो ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं. Because at the end of the day, they are the professional and the doctor. It's also a part of the doctor's job to explain what they're doing to the patient. So if the patient asks something without knowing what they're talking about, then the doctor shouldn't be judgmental towards that, but rather clear that out.
गुड। तो नॉन जजमेंटल से, जैसा कि आप सब लोगों ने बताया, नियर बाई आप बिल्कुल आसपास में ही थे, लेकिन अपने को कभी भी कमेंट पास नहीं करना होता है। कमेंट पास करने से मतलब है, हमारे इधर ओपीडी में कई सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि सीए बक्कल मिकोजा, अब ये एक मेडिकल टर्म्स है, नॉर्मली सब लोगों को पता है, जैसे मुंह और जबड़े का कैंसर हो जाना, ठीक है, जिसको अपन सीए बक्कल मिकोजा बोलते हैं। तो हम लोग जब हिस्ट्री लेते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आपने कभी कोई टोबैको वगैरह चेव किया, या फिर आप बीड़ी सिगरेट गुटखा वगैरह वो खाते हैं, तो अपन बोलते हैं वो केवल हिस्ट्री दे रहे हैं, तो उनके ऊपर इस तरीके से कमेंट नहीं पास करना, हाँ ठीक है 10 सालों से तुमने ये खाया तो होगा ही। तो इस तरीके से अपने को उस तरीके से जजमेंटल नहीं होना, उनकी बात सुनना है, या कई बार जैसा है कि उसकी बातों को उकेरना नहीं है। जैसे कई बार ऐसी चीज उनके, अटल ऋषिकेशचा नंबर सॉरी, आता सांग जाऊन ऍडमिट व्हा म्हणून. तो नॉन जजमेंटल से मतलब है कि आप अपने ऊपर जज नहीं करना है, कि जैसे कोई पेशेंट अभी कैंसर से सफर कर रहा है तो उसको ब्लेम कर दो आप, कि आपने इस तरीके से, जैसे एक कोई एग्जांपल है कि एक पेशेंट का स्मोकिंग का हिस्ट्री है और उसको लंग्स का कैंसर हो जाता है, तो उस टाइम उसको इस तरीके से कमेंट करे, अच्छा स्मोकिंग मतलब आप चैंपियन रहे हो बीड़ी सिगरेट के, तो इस तरीके से उनको वो अजीब सा लगेगा, तो उनको लगेगा यार हमारी केयर नहीं करके हमारे जो उल्टे जो गड़े मुर्दे हैं उसको उकार रहे हैं। अभी पैलिएटिव केयर अपना मेन गोल यही होता है कि उनको किस तरीके से कंफर्ट लेवल दिया जाए, चाहे वो साइकोलॉजिकली हो, चाहे फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली हो, तो इन सब चीज़ों को अपने को एड्रेस करना चाहिए। तो सबसे पहला प्रिंसिपल दिमाग में रखना है कि नॉन जजमेंटल एटीट्यूड होना चाहिए। सेकेंड वन आता है, वेरी पॉपुलर है और आप सबको पता है, इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई आप में से बता सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्फिडेंशियली? वॉलेंटियर में से कोई भी? जो कॉन्फिडेंस भी क्या मतलब? पेशेंट बोलता है वो हमको कॉन्फिडेंशियल अपने पास ही रखना है, लोगों के पास उसको शेयर नहीं करना है, अरे उसने ऐसा बोला उसने वैसा बोला. इट शुड नॉट, बिकॉज इट्स अ ट्रस्ट रिलेशनशिप. Because if we once break the relationship of that trust, never the patient next time will trust and share anything with us. वेरी गुड, बहुत अच्छे से बताया, हमारी जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें। कॉन्फिडेंस से मतलब अंडरस्टूड है कि कोई भी चीज़ आपको बोली गई है उस पेशेंट के बारे में, चाहे वो उनकी कैसी भी हिस्ट्री रही हो इन फ्यूचर, इन पास्ट, तो उसको अपने तक ही सीमित नहीं रखना है। कई बार क्या होता है कि अपने हेल्थ केयर पर्सनल जो होते हैं वो आते हैं, अच्छा आपको ये था, उस पेशेंट को ये हो गया था, फलाना है, ये है वो है, तो उससे क्या होता है कि वो आपके और पेशेंट के बीच में जो ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए था वो नहीं होगा। अगर आप कॉन्फिडेंट रखते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन, तो अगली बार आपको अभी 10% इंफॉर्मेशन बताई गई थी उस पेशेंट के खुद की हिस्ट्री के बारे में, अगली बार अगर आप किसी को नहीं बताते हैं तो आपको जरूर वो 20%, 30%, 40% सारी चीजें आपके साथ में शेयर करना शुरू करेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कॉन्फिडेंशियली सारी चीजें आपको अपने पास रखनी चाहिए, किसी के साथ में उस पेशेंट की निजी इंफॉर्मेशन वो शेयर नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन के बारे में कोई बता सकता है? वॉलेंटियर में से? हमको देखो मैंने, पेशेंट को समझना चाहिए, उनके प्रॉब्लम्स को समझना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए इतना छोटा प्रॉब्लम है क्या तुम इतना ही बोलते हो. नो, we may feel it is a small, but to them how they are going through, we have to have empathy towards them by considering their case, every patient case in a separate manner. सो जो भी प्रॉब्लम है या जो भी चीज अपने को बता रहे हैं वो आपको क्लियरली, और जो भी डिसीजन लेने जा रहे हैं तो आपको सब उसके बारे में सोच विचार करके फिर जाना चाहिए। तो जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपसे, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कम्युनिकेशन क्या है, एक वन वे प्रोसेस है या टू वे है? 2 way. टू It's वे। a two-way इसीलिए, process. हाँ, इसीलिए हम लोग अगर आपस में, आप हमारे साथ शेयर करेंगे, हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो उससे क्या होता है, बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है और आप लोग और हम लोग आपस में
अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। जो भी इंफॉर्मेशन आपके थ्रू मुझे मिल रही है तो उससे मैं ये पता लगा पा रहा हूँ कि आपको कितनी चीज आती हैं, और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ तो मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको और क्या बता सकता हूँ। तो इसको हमेशा टू वे रखना चाहिए, जिससे इंफॉर्मेशन और जो कम्युनिकेशन है वो और बेटर बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है क्लियरिटी और कंप्लीटनेस। इसके बारे में क्या बता सकते हैं कोई? आप में से कोई भी थोड़ा सा कुछ बता सकते हैं? हेलो। हम्म। हाँ जी सर, इसके रिगार्डिंग द आइडिया इज कि समटाइम्स हम अज्यूम कर लेते हैं कि जो हमने बोला है दूसरे को वो समझ आ गया पूरी तरह, मिसकम्युनिकेशन होता है। सो वी शुड ऑलवेज कंफर्म एंड चेक विद दैट अदर पर्सन कि हैव दे प्रॉपरली अंडरस्टूड हम क्या बोल रहे हैं, टू एंश्योर कि सब सेम पेज पे हैं। हम्म। वेरी गुड। और कंप्लीटनेस से मतलब? कंप्लीटनेस से मतलब सर आप सारा का सारा इन्फॉर्मेशन उनको बता रहे हैं, यू आर नॉट आप कुछ अपने पास नहीं रख रहे, या सारा कुछ उनको बता रहे हैं, तो उनको जैसे इन्फॉर्म डिसीजन लेना हो, सब कुछ लेना हो, वो कर सकते हैं। वेरी गुड। तो जो भी अपन एक लास्ट डिसीजन पे पहुंचते हैं तो उस कम्युनिकेशन को या उस बातचीत को अपने को बीच में ही कभी एंड नहीं करनी चाहिए। जैसे अभी अपनी फैमिली मीटिंग चल रही है और बीच में अपने कोई फोन आ जाता है, चलो 5 मिनट में मैं आया, ऐसे बोल के अपन जाते हैं ना। कई बार ऐसा यूजली डॉक्टर या हेल्थ केयर पर्सनल करते होंगे, करते हैं ना? कई बार ऐसा करते हैं ना? आप में से किसी ने यस देखा सर, है ऐसा? हाँ, तो उस टाइम क्या होता बहुत है? हाँ, बहुत बार ऐसा होता है। तो उस टाइम क्या बहुत बार होता है? होता है। क्या होता है अगर आपने वो बीच में कम्युनिकेशन छोड़ दिया तो वो जो पेशेंट के प्रति जो आपका ट्रस्ट या जो रेपो बना हुआ था वो क्या होता है, बिल्डअप नहीं होता है, और अगली बार आपको उतने एनर्जी के साथ में सारी इंफॉर्मेशन वो नहीं देगा, क्योंकि उसको आपने कंप्लीट नहीं किया। ठीक है, तो सारा जो भी कम्युनिकेशन एक बार आप स्टार्ट करते हैं तो उसको आप कंप्लीट कीजिए और कंसाइज कीजिए। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट आता है वो है एम्पैथी। कौन बताएगा इसके बारे में? एम्पैथी कोई भी है? Be in एम्पैथी the मीन्स other person's shoes. हाँ, स्नेहा जी उनका दर्द, बता रहे- Yeah, empathy means to be in the other person's shoes, to try to feel what they're feeling and see things from their point of view. वेरी गुड। तो सबको क्लियर है? ये शायद आपके पैलिएटिव केयर के इंट्रोडक्शन में ये वर्ड कहीं पे आया होगा, पता है? यस सर। वेरी गुड। तो आपको हमेशा आपकी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए? एम्पैथेटिक होना चाहिए। आपको अपने आप को उसी स्थिति में रख के सोचना चाहिए कि अभी लाइक दैट कोई पेशेंट आता है और उसकी सिस्टर उसको आपके हॉस्पिटल में या आपके सेटअप में लेके आते हैं, तो आप उसकी जगह पर रहकर देखिए कि अब उसको किस किस तरीके की दिक्कत आ रही है। लाइक दैट वो कोई पेशेंट आया तो उसके घर पे उसके बच्चों का अभी क्या हाल होगा, उसके घर पे उनकी पढ़ाई के बारे में क्या इश्यू होगा, वो जो इतनी बड़ी ट्रेवल करके जो इधर आए हैं तो उनकी ट्रेवल से उनको कितनी थकान हुई होगी। उन्होंने सुबह से यहाँ तक हॉस्पिटल तक लेके आए हैं, 8-10 घंटे की जर्नी करके आए हैं, तो उनके खाने पीने का क्या इश्यू रहेगा, अगर वो यहाँ पे स्टे करते हैं तो वो सब क्या रहेगा। तो उनको अपने आप को उधर स्थिति में रख कर देखना है, तब आपको पता चलेगा कि वो कितनी प्रॉब्लम है। पेशेंट की फिजिकल प्रॉब्लम्स के अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल, सोशली, स्पिरिचुअली और भी बहुत सारी दिक्कतें होती है, तो उन सबको आप उस कम्युनिकेशन के माध्यम से ही एड्रेस कर पाते हैं। जैसे फिजिकल असेसमेंट से डॉक्टर खाली उसके फिजिकल पेन को पता कर सकते हैं, लेकिन दूसरी चीजें जो हैं वो आप ज्यादा से ज्यादा बातचीत करके ही पता लगा सकते हैं। तो हमारे पैलिएटिव केयर में दो वर्ड आते हैं, एक सिंपैथी और एक होता है एम्पैथी। सिंपैथी का मतलब कोई बता सकते हैं? दया। वेरी गुड। और कोई? सहानुभूति। वेरी गुड। अब इससे मतलब होता है, सिंपैथी से मतलब होता है, कई बार पेशेंट आपके वार्ड में या आप कई बार ऐसे पेशेंट देखते होंगे कि पेशेंट ऐसी स्थिति में है कि वो रोने लग जाता है पेशेंट, या तड़पने लग जाता है, तो बहुत कुछ इधर उधर माथा पटकता है, सिर पटकता है, तो उनके साथ साथ वैसा ही बिहेवियर करने लग जाना। जैसे कोई पेशेंट रो रहा है और आप देख के आप भी रोने लग जाते हैं, तो क्या ये उचित है? नहीं। तो इस तरीके से बिहेवियर करना भी रॉन्ग है ना। तो इस तरीके से हमेशा गलत। आपकी थिंकिंग कैसी होनी चाहिए? इमोशनली अटैच तो होना चाहिए, लेकिन
आप उन्हीं की तरह वैसा बिहेवियर नहीं करना है, ठीक है। तो आपको हमेशा एम्पैथेटिक बिहेवियर करके उसी पेशेंट को उसकी अपने आप को उसी नजरिए में रख करके उनके प्रति अब क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तब आपको आगे उसके लिए प्लान बनाना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि कई बार ये चीजें अभी पैलिएटिव केयर में आप आ रहे हैं तो सारे दिन भर आप अगर आप होम विजिट में या पैलिएटिव केयर सेटअप में जाएंगे तो इस तरीके से रोज पेशेंट आपको देखने को मिलेंगे। तो उस टाइम आपको ये नहीं करना है कि पूरे दिन भर आपके दिमाग में वही चीजें बात चलती रहेगी। अच्छा, एक बच्चा आया था 5 साल का था और उसको कैंसर हो गया, अब आगे इन फ्यूचर उसके क्या होगा, उसके एक छोटा ब्रदर है, वो घर पे अकेला है, उसके पेरेंट्स तो यहाँ लेकर आ गए हैं। सारे दिन भर वही की वही चीजें दिमाग में चलती रहेगी तो उससे आपका खुद का दिमाग खराब हो जाएगा ना। तो आपको वहां पर उसके लिए आपको एम्पैथेटिक थिंकिंग ही रखना है, ठीक है। तो ये हमेशा ये सारी चीजें घर पे लेकर पे भी नहीं जाना है, इसकी इसीलिए आपको ये सारी ट्रेनिंग दी जा रही है। नेक्स्ट चीज पे अपन पढ़ते हैं कि कम्युनिकेशन होता कौन कौन से टाइप का है। सबको पता है, अंडरस्टूड है कि हम इधर कोई ना तो कोई एग्जाम लेने जा रहे हैं ना कोई वो फॉर्मल कोई पेपर लिखने जा रहे हैं, तो सिंपल है वर्बल और नॉन वर्बल। सब करते हैं डे टू डे लाइफ में। तो नॉन वर्बल में और वर्बल में क्या डिफरेंस है? वर्बल जो हम मुंह से बोलते हैं, नॉन वर्बल जो हमारी बॉडी लैंग्वेज से उनको डिपिक्ट होता है। वेरी गुड। और ये डे टू डे लाइफ में अपन सब लोग नोटिस करते हैं क्या? यस। वेरी गुड। तो ये सारी चीजें भी अपन जब पेशेंट से बात करते हैं तो वो भी सब नोट की जाती हैं। तो मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशन वर्बल होता है या नॉन वर्बल होता है? नॉन वर्बल। हाँ, क्योंकि हमने स्लाइड में ऑलरेडी दे रखा है आपके लिए। जो 80% जो कम्युनिकेशन कैसा होता है, नॉन वर्बल होता है, ठीक है। और नॉन वर्बल में क्या क्या होता है? आई टू आई कांटेक्ट कैसा है, जेस्चर कैसा है, टोन ऑफ वॉइस कैसी है, तो वो सारी चीजें भी आपकी मॉनिटर की जाती है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ रिटर्न भी होता है। और बच्चों के अंदर हम लोग कौन सा मीडियम यूज करते हैं कम्युनिकेशन के लिए? प्ले। खेल। हाँ, खेल कूद से उनको कुछ पपट शो वगैरह के माध्यम से या कुछ खिलौनों की तरीके से उनको ऐसे समझाया जाता है, ठीक है। तो उनको भी कैसे कम्युनिकेट करना होता है उसके लिए भी स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो आपको इन सब को फॉलो करना है कि जब आप पेशेंट से बात कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। ये सारी चीजें जो हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड में अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब कुछ बैरियर जो हैं वो पैलिएटिव केयर में वो क्या क्या हैं कम्युनिकेशन के अंदर? फियर ऑफ मोर्टिलिटी। अब पैलिएटिव केयर जो आपने इंट्रोडक्शन में ही पहले से ही पढ़ा होगा कि हम लोग किसी भी पेशेंट की बीमारी को ठीक नहीं कर रहे हैं। मैं सही बोल रहा हूँ? क्या हम पैलिएटिव Yes, sir. केयर में बीमारी को ठीक करते हैं? नहीं No, सर। sir. हाँ, तो अपन क्या करते हैं उसमें? सिम्टम मैनेजमेंट। वेरी गुड। हम बीमारी को ट्रीट नहीं करके उसके सिम्टम मैनेजमेंट करते हैं, ठीक है। तो अपने को सबको पता है कि ये पेशेंट एक ना एक दिन तो जाना ही है। तो ये अपने को एक फियर रहता है कि मोर्टेलिटी तो होनी है। इसके अलावा लैक ऑफ एक्सपीरियंस, मतलब अगर आपको कम्युनिकेट करने का बहुत कम एक्सपीरियंस है तो आपको किस पेशेंट से कैसे किस तरीके से बात करनी होती है, तो उसकी वजह से भी आप कई बार कम्युनिकेशन में गड़बड़ कर जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल बताऊं, हमारे इधर भी कई सारे डॉक्टर्स जो है वो फॉलो करते हैं। जैसे ओंको वाले पेशेंट्स जो है जो उनके पास जाते हैं। अब आपको पता है कि किसी भी पेशेंट को बीमारी अगर कैंसर हो जाती है तो उसको बताने का भी एक तरीका होता है। कई बार ओपीडी में जाते जाते आपको पता है एक बार पेशेंट मिल जाता है वार्ड में या गैलरी में जाते जाते ही और पेशेंट की रिपोर्ट दिखाता है और उसको बुला के घूम बुलाते हैं, इधर आइए इधर आइए, आपको तो रिपोर्ट जो बता रही है उसमें कैंसर है। क्या ये उचित तरीका है बताने का? नहीं। नहीं। तो उसके लिए भी कुछ एक सेटअप होना चाहिए, सीन होना चाहिए पूरा। तो ये सारी चीजों के लिए एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है। तो लैक ऑफ एक्सपीरियंस मीन हाउ टू कम्युनिकेट द कैंसर पेशेंट्स और पैलिएटिव पेशेंट, तो उसकी वजह से भी ये कम्युनिकेशन में एक बड़ा हर्डल है।
इसके अलावा हम लोग इमोशंस जो होते हैं उसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। कई बार पेशेंट जो होता है वो अपन सारी इंफॉर्मेशन देते हैं और वो चाहता ही नहीं है कि हम वो सारी इंफॉर्मेशन दें, लेकिन अपन जबरदस्ती भी देते रहते हैं। तो उसकी वजह से हम उनके कई सारे इमोशंस जो होते हैं, जैसे पेशेंट इंफॉर्मेशन आपने एकदम से शॉक दिया, मान लीजिए कि तुम्हें तो कैंसर है, और पेशेंट तुरंत रोना शुरू कर देता है या रोने ही वाला होता है, तो अपन बोला नहीं नहीं रोइए मत, आप चुप रहिए। तो क्या चुप रखना भी वो एक उचित तरीका है? नहीं, तो क्या let them करना चाहिए? remove that. Let them remove them, means that outburst, and then they will settle down. They will यस, वेरी get गुड। to the acceptance of the thing slowly and steadily. तो Naturally, अपने it is all of a sudden, so they will not be mentally prepared to accept it. हम्म, तो हमको कोई भी जो इमोशंस शो कर रहा है पेशेंट, उसको हमको अवॉइड नहीं करना चाहिए, उसको एड्रेस करना चाहिए। इसके अलावा इनसेंसिटिविटी जो होती है उसको भी अपन जो है एक बड़ा हर्डल मानते हैं अपने कम्युनिकेशन में। इसके अलावा अपन लोग ये फील करते हैं कि पैलिएटिव केयर में क्या उखाड़ लेंगे, क्या होगा उससे, एक दिन तो सबको जाना है, तो हम लोग क्यों करें। तो हमें एक फेल होने का हमें ना कहीं डर रहता है, जिससे अपने आप को हम लोग गिल्ट महसूस करते हैं। इसलिए कई लोग जो हैं वो इस ब्रांच में आने के लिए भी डरते हैं लोग, मैंने पर्सनली ऐसा फील किया। तो ये सारे कम्युनिकेशन के माध्यम से या कम्युनिकेशन के थ्रू इन सबको अपन हटा सकते हैं। अब कई सारे मिथ जो हैं वो अपने कम्युनिकेशन में या जब अपन बातचीत करते हैं तो उसमें माने जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है कम्युनिकेशन इज डेलिब्रेट। क्या ये सही है? डेलिब्रेट कर सकते हैं? रॉन्ग है सर। बट ये मिथ है। इन पैलिएटिव केयर सेटअप में हम लोग कम्युनिकेशन को डेलिब्रेट नहीं करते हैं। जैसे हम लोग कोई पेशेंट से बात करते हैं तो वो पहले से ही प्री प्लान थोड़ी होता है, पेशेंट कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो पैलिएटिव केयर में इसको हम लोग प्री प्लान नहीं कर सकते, जो भी आता है वो ऑन द स्पॉट होता है। तो एक बड़ा मिथ है कि ये पहले से ही फिक्स होता है, फिक्स नहीं होता है। मतलब मिथ से मतलब है कि इन सब मिथ को अपने को फॉलो नहीं करना चाहिए, ये एक बड़ा मिथ है। इसके अलावा वर्ड्स मीन सेम टू सेम सेंडर और रिसीवर, मतलब अपन सारी चीज जो बात बोल रहे हैं वैसी की वैसी जो रिसीवर है या पेशेंट हैं वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेगा। ऐसा भी सही नहीं है, कई बार अपन बोलते हैं कि शब्द कुछ और बोलते हैं और उसका वो अर्थ कुछ और निकलता है। सही होता है ना ऐसा? कई बार आप सोशल मीडिया के थ्रू या आप कोई टेलीफोनिक कभी बात करते हैं तो ऐसा कभी सुनने में आया है ना, कुछ वर्ड का अर्थ का अनर्थ हो जाता है। Yes, sir. Chinese whisper. हाँ, जैसे कई बार एक मैंने कहीं सुना था, कोई एक मंगाता है, एक व्यापारी जो होता है कि हीरा बेच देना, और वो एक बोरी भर के खीरा बेच देता है। समझ में आया कुछ? तो कुछ वर्डिंग का इस तरीके से सेम जो वर्ड होते हैं वो इस तरीके से सेम टू सेम रिसीवर के द्वारा सेम टू सेम मीनिंग जो है वो नहीं निकाला जाता है, ठीक है। तो वर्बल कम्युनिकेशन इज प्राइमरी, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा कम्युनिकेशन इज वन वे भी नहीं होता है, ये हमेशा टू वे होता है। जैसे अपन लोग अभी आपस में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। कांट गिव टू मच इंफॉर्मेशन, मतलब एक बार में बहुत सारी सूचनाएं नहीं दे सकते, दे सकते हैं अगर पेशेंट और उसके रिलेटिव या केयर गिवर विलिंग है तो वो सारी चीजें अपन दे सकते हैं। तो ये सारे मिथ हैं, इन सबको नहीं फॉलो करना चाहिए। अब ये सारी जो अगली स्लाइड में मैं बता रहा हूँ ये डे टू डे लाइफ में डॉक्टर या हेल्थ केयर पर्सनल्स जो हैं वो फॉलो करते हैं, और उसका फैमिली मेंबर या पेशेंट है उसका क्या मीन या क्या अर्थ निकालता है वो आप समझिए। जैसे कभी डॉक्टर बोलता है हिज लैब्स आर बेटर, तो उससे पेशेंट और फैमिली मेंबर क्या अर्थ निकालते हैं? ही विल जया। गेट वेल, मतलब उसकी रिपोर्ट अच्छी आ रही है, इससे मतलब ये नहीं कि वो अब ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो उसका अर्थ वो ये निकाल लेते हैं। तो उसको सही से कम्युनिकेट करना आपको आना चाहिए, मतलब रिपोर्ट अच्छी आई है तो
जरूरी नहीं कि ठीक हो जाएगा। जो भी सही से आता है वो हमेशा आपको सही चीज को कम्युनिकेट करना आना चाहिए। मतलब पैलिएटिव केयर में हमेशा यही बोला जाता है, गिव ए रियलिस्टिक होप। रियलिस्टिक होप से मतलब है कि अगर आपको पता नहीं है कोई चीज का, तो उसके बारे में बिल्कुल आप मना भी कर सकते हैं। जैसे एक कोई पेशेंट मुझसे पूछता है कि मेरे पास कितना टाइम है, तो आप में से ऑडियंस कोई बता सकता है मेरा आंसर या आपका आंसर क्या होगा? आपसे कोई पेशेंट पूछता है कि मेरे पास कितना टाइम है, और कोई भी वॉलेंटियरली बता सकता है। डॉक्टर साहब उमेश जी को। अगर सर बहुत क्रिटिकल रहेगा तो वी कैन टेल 15 days to 1 month अप्रोक्सीमेटली, ऐसा बोल सकते हैं। अगर अभी हमको पता चल रहा है कभी कभी नॉट मोर देन 1 month करके ऐसे बोल सकते हैं। अगर थोड़ा बेहतर रहेगा तो हम 6 month भी बोल सकते हैं। एंड वेरी गास्पिंग स्टेट में रहेगा तो 1 or 2 days ऐसा बोल सकते हैं सर। और By अगर seeing the condition. दो दिन बाद में भी वो पेशेंट नहीं गया तो? ऐसा बहुत बार होता है सर, हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं और कभी कभी गलत निकलते हैं। हाँ, तो इसीलिए ऐसा होता अगर आपका इस तरीके का क्वेश्चन आता है, कई बार नहीं पता है, तो अपन क्या बोलेंगे? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। है। ओके ओके ओके। तो लेकिन फिर उसके बाद में उससे वही क्वेश्चन वापस पूछना है कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। समझ रहे हैं कि मतलब उसके पीछे ना कुछ तो रीजन है, इसलिए वो ऐसा पूछ रहे हैं। तब वो बोलना वापस शुरू होगा, क्योंकि आपने अगर पहले अच्छे से ही आपने रिलेशन और बिल्ड ट्रस्ट जो है वो बिल्ड कर रखा है। जैसे एक एग्जांपल बताऊं, कोई पेशेंट आपसे बोलता है कि मुझे मेरे बेटे की शादी देखनी है, इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अभी मेरे पास 2 महीने या 6 महीने हैं, तो मैं बच्चे की शादी हो जाए तो एक बार फिर उसके बाद चले जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं है। तो क्या ऐसा उसके लिए अपन पॉसिबल कर सकते रात्री हैं? पैरासिटामोल जाओ ना कितना। क्या ऐसा पॉसिबल कर सकते हैं डॉक्टर साहब उमेश जी? सर, हेलो डॉक्टर उमेश जी। हाँ सर जी, सॉरी, मैं एक पेशेंट के साथ, हाँ बोलिए सर। उनके लिए प्लीज प्रीपोन कर रिपीट। सकते हैं? क्या करेंगे? प्रीपोन, प्री जैसे प्लान, हाँ। हाँ। यस सर, यस सर, यस सर, वी कैन। अगर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया हम्म देन वी कैन प्लान द उनका कुछ उनकी इच्छा बाकी है, हम्म उनको कुछ बच्चों के लिए कुछ करके रखना है, हम्म वाइफ के लिए कुछ करना है, हम्म। कुछ विल लिख के रखना है। वेरी गुड। इसके लिए हम लोग थोड़ा हेल्प कर सकते हैं उनको। वेरी गुड, थैंक यू सर। तो जैसा कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था, एक पेशेंट यदि बोलता है कि मेरे बेटे या बेटी की शादी हो जाए फिर चली जाऊं, तो उसको अपन प्रीपोन कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही शादी हो जाती है, और जैसे आपने बोला कि उसके 6 महीने पास में हैं अभी और जिंदा रहने के, लेकिन 6 महीने हो गए पूरे, अब बोल रहे हैं कि 6 महीने तो हो गए, मैं तो गई नहीं, अब मैं मेरे एक पोता पोती या नाता नाती जो भी हो जाए तो फिर मैं और कहूँ, तो अब वो विश आप पूरी कर सकते हैं क्या? नहीं। नहीं कर सकते हैं ना, वो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि शादी करवाना तो उसके लिए आप उसके नियर बाय रिलेटिव्स वगैरह जो हैं उनसे बात करके प्री प्लान कर दिया। लेकिन फिर भी उनकी विश कंप्लीट करने के लिए आप है ना, उसके लिए एक आइडियाज है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं लाइक दैट। उनसे ये पूछिए कि आप उनके लिए क्या करना चाहते हैं, तो उनको बोल सकते हैं कि आप वीडियो मैसेज जो हैं वो रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, या उनके लिए कोई स्वेटर बुन के रख सकते हैं, तो ये आपकी यादें जो हैं उस जो आने वाले बच्चे के लिए वो याद रहेगी, तो उनके लिए एक अच्छा मैसेज होगा। तो सारी चीजें अपन ड्रीम कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन उसको मॉडिफाई करके उसकी जो विश है वो उसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो कभी भी ये कम्युनिकेशन में हमें हमेशा ध्यान रखना कि किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर नहीं आता है, तो उसके लिए आप हमेशा उसी क्वेश्चन को उसी पेशेंट से या उससे रिलेटिव से पूछ सकते हैं। कि जैसे मेरे पास टाइम कितना है, तो उसको सेम क्वेश्चन आप उसी से कर लो कि आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। क्यों तो फिर क्यों वो पूछ रहे हो? तो फिर वो अपनी सारी जो भी अंदर जो दबी हुई चीजें जो है वो सारी निकाल करके बाहर
आएगी। तो हमेशा एक चीज आप पैलिएटिव केयर में ध्यान रखना, किसी भी क्वेश्चन के लिए अगर आप आंसर नहीं आता है तो सेम क्वेश्चन आप उसी से वापस पूछ लें, तो वो उससे उसका मतलब समझ में आ जाएगा कि वो पेशेंट आपसे क्या बुलवाना चाहता है। तो पैलिएटिव केयर में या कम्युनिकेशन में लिसनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्यों इंपॉर्टेंट है वो अपने नेक्स्ट वाली स्लाइड में बताएंगे। अब जो अगला डॉक्टर का जो स्टेट्स हैं वो अपन बात करते हैं। जैसे द ट्रीटमेंट इज नॉट वर्किंग, तो उससे फैमिली मेंबर या पेशेंट जो है वो क्या परसीव करते हैं कि डॉक्टर गिविंग अप, मतलब अब आगे कुछ पॉसिबल नहीं है। तो इसकी जगह पे कुछ और वर्ड यूज लिए जा सकते थे, ठीक है। तो जैसे द ट्रीटमेंट इज नॉट वर्किंग, मतलब लेट्स वी कैन ट्राई द अनदर ट्रीटमेंट ऑप्शंस। जैसे अभी आयुर्वेदिक ऑप्शंस क्या हो सकता है, एलोपैथिक में अगर कुछ ज़्यादा नहीं है तो आप कहीं जड़ी बूटी या जो भी उनका ओपिनियन है तो वो लेने के लिए आप उनको ऑप्शन दे सकते हैं। तो हमेशा जो आपको रियलिस्टिक होप जो होती है वो देना है, नेगेटिव इंप्रेशन कभी नहीं देना। तो जिससे क्या होता है कि वो उनको अंदर वो स्ट्रेंथ रहती है। फॉल्स होप एक तो आपको कभी नहीं देना कि बिल्कुल रेडी हो जाएगा, तुमको 10 दिन में ऐसे दौड़ाने लग जाएंगे। ये सारी चीजें जो है उससे आपका ट्रस्ट जो है वो अच्छे से बिल्ड नहीं होगा। तो हमेशा गिव अ रियलिस्टिक होप, और जो हमेशा आप जो दे रहे हैं इंफॉर्मेशन वो ट्रुथ होना चाहिए, सही चीज होना चाहिए, कभी भी गलत नहीं बताना है, और रियलिस्टिक जो है वो होप देनी है। और किसी भी चीज का अगर आपको आंसर नहीं आता है तो उसी चीज का क्वेश्चन वापस उसी पेशेंट से आप सेम चीज पूछेंगे तो आंसर खुद ब खुद निकल के सामने आएगा। फिर अगला एक और स्टेट है, शुड वी पुट योर डाइंग फादर ऑन वेंटिलेटर। अब वेंटिलेटर के बारे में आपको सबको पता ही होगा। उससे लोग ये परसीव करते हैं कि वेंटिलेटर पे डालने से हमारा पेशेंट जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसा पॉसिबल है या जरूरी है कि सब जो पेशेंट हैं वो वेंटिलेटर पे डालते ही ठीक हो जाएंगे? नो सर। नहीं होता है ना। तो उसकी जगह पे एक वर्ड भी इसमें यूज किया गया है कि डाइंग फादर। डाइंग मतलब जो अभी मरने ही वाले हैं। तो वहां पर कुछ और वर्ड आप अदर वे में किस तरीके से यूज कर सकते थे वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो किस तरीके से आपका ये कम्युनिकेशन अफेक्ट करता है वो अगर नेक्स्ट वीडियो में अपन इसको बारे में अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो मैं एक वीडियो प्ले करता हूँ, उसको आप अच्छे से देख के आपको इस पूरे जो अभी स्लाइड बताई गई उसमें आपको पूरा समझ में आ जाएगा। Your words makes a lot of difference. Like what was written before and what she wrote later, it really Yeah. had a great impact on the mind of the people who were going around. Because first, no one was looking at what was written, and when she wrote, she changed the words. It was written the same thing, but the wordings were changed, and that's where the impact changed. Very good. So your words have lot of impact, so you have to be really, really careful when you're talking to someone. वेरी गुड। तो ऐसा अपन लोग डे टू डे लाइफ में भी अगर हम लोग फॉलो करें तो ये जो वीडियो था उसका हमने हेडिंग दिया था पावर ऑफ वर्ड। सेम दूसरे पार्टिसिपेंट के लिए मैं बता देता हूँ कि ये जो वीडियो जो बताया गया था उसमें एक जो भिखारी है वो बैठा है और उसने एक पोस्टर पे ये लिखा हुआ है कि आई एम ए ब्लाइंड मैन, आई कैन नॉट सी। तो उसको देख उसने अपने आप की जो वीकनेस है उसको शो किया, ठीक है, कि मैं ब्लाइंड मैन हूँ और मुझे कुछ दीजिए खाने पीने के लिए, वैसा कुछ लिखा है। और वहां पर उस टाइम लोग कुछ ही लोग उसको ध्यान दे पा रहे, तो थोड़ा अमाउंट में ही उसको पैसे मिल रहे थे। लेकिन अब आपने बताया ना नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हमने पढ़ा था अच्छे से, वो दूसरा एक कोई लेडी आता है उसके पाँव की तरफ वो जो शू है उसको टच करके देख रहे हैं, तो टच भी एक तरह से कम्युनिकेशन का पार्ट है। तो वो अगली बार नेक्स्ट टाइम जो आती है लेडी उसको पहचान जाता है, फिर उससे वापस ये क्वेश्चन पूछता है कि आपने ऐसा क्या डिफरेंट चीज किया कि जिससे लोग और अट्रैक्ट हुए मुझे डोनेट करने के लिए। तो उसने क्या बोला वापस, आई रोट सेम वर्ड बट इन अ डिफरेंट वे। उसने ये लिखा था कि व्हाट ए ब्यूटीफुल डे बट आई कैन नॉट सी, मतलब बहुत खूबसूरत दिन है लेकिन मैं देख नहीं सकता। उससे लोग ये अर्थ निकाल रहे हैं कि उसके इमोशंस को उसने टच किया। तो ये सारी चीजें आप अपने आप को चेंज करके वर्डिंग से आप उस पेशेंट के अंदर
कितना बदलाव ला सकते हैं। अब डायरेक्टली जैसे मैंने अभी पेशेंट के लिए बोला था, कैन आई पुट योर डाइंग फादर ऑन वेंटिलेटर, मतलब अब उसके लिए अभी मरा तो नहीं है पेशेंट, लेकिन आप ये वर्ड यूज करते हैं तो उस पेशेंट के रिलेटिव या केयर गिवर के ऊपर कितना इमोशनली जो है वो प्रिक करेगा। एम आई राइट? तो उस जगह पे आप अपने वर्डिंग को चेंज करके किस तरीके से अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट जो है कम्युनिकेशन का, उसमें जो टोटल कम्युनिकेशन जो होता है उसका जो मोस्ट ऑफ द 40% या 50% जो पार्ट होता है उसमें, चाहे मैसेजर का हो चाहे रिसीवर का हो, वो होता है लिसनिंग। तो आप ये पिक्चर देख रहे हैं ना, उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्ला 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 चीज जो कर रहे हैं, उसमें ये लोग एक दूसरे की बात कोई नहीं सुन रहे, लेकिन आपस में सब लोग बोल रहे हैं। तो ये एक गुड कम्युनिकेशन है क्या ऑडियंस? Sir, good evening, sir. I have a request. There are some participants who are not very comfortable with Hindi. ओके So, थोड़ा सा because we have got some requests. So, आप अगर थोड़ा सा English में भी explain कर देंगे. वैसे तो it is like quite understandable. लेकिन फिर भी अगर हो सके तो please try कीजिएगा. I Thank will you. try, ma'am. Yeah. Thank you, sir. Thank you so much. So the most of the part in a communication, about 40 to 50% is a listening. So listening is a important part in a communication. So what step you can follow in the communication, like when you are start the communication, so you have to start, I will explain this slide, the listening step। हमेशा जो है वो एक जो कम्युनिकेशन जो है स्टार्ट करना चाहिए, तो वो उसके लिए आपको एक अलग से सेपरेट रूम के अंदर करना चाहिए। ठीक है। तो उसके अंदर फैमिली मीटिंग जब अपन कॉल करते हैं, तो कई बार जो कॉरिडोर में या वो चलते फिरते अपन स्टार्ट नहीं करना चाहिए, हमेशा बैठ करके आपस में बात करनी चाहिए। और गिव योर फुल अटेंशन टू पेशेंट और केयर गिवर। और इसके अलावा डोंट इंटरप्ट, बी साइलेंट, मतलब हमेशा आपको जो पेशेंट जो बता रहे हैं उसको आप अच्छे से केयरफुली सुनना चाहिए। ठीक है। डू नॉट चेंज द सब्जेक्ट, जो बात कर रहे हैं उस सब्जेक्ट को आपको चेंज नहीं करना चाहिए। इसके अलावा व्हेन द पर्सन इज फिनिश्ड, चेक टू see if you understand, I think I heard you say, or I understand that you are feeling। मीन जो भी पेशेंट ने आपको जो बताया उसको वापस एक्नॉलेज करना है। मीन अगर कोई इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है तो यू हैव biopsy report which is showing this is a cancer, सो आपको अगेन उस इंफॉर्मेशन को एक्नॉलेज करना है और उसको रिपीट करना है। और ऑलवेज स्पीक और आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन। हमेशा जो है यस नो टाइप के क्वेश्चन आपको उस पेशेंट या उसके केयर गिवर से नहीं पूछना चाहिए। तो ये दीज आर स्टेप यू हैव टू फॉलो ड्यूरिंग द listening। So I have already discussed that about 40 to 50% communication is a part of listening। Okay, so हमेशा you can follow the step ask, tell, ask। मीन आपको पूछना है, बताना है, पूछना है। तो इससे आपका कम्युनिकेशन और स्ट्रांग बन सकता है। These are the do's in a verbal communication you have to follow। When you are start your communication, always you have to greet the patient and family and introduce, first you have to introduce yourself, like when you are starting your communication in a room, then you have to provide the seat them, then you have to start with your after the greeting you have to start with your introduction, like that I am a volunteer, or I am a nurse, I am a doctor, or I will assist like this। So you have to give complete information about you, then you can start with the communication of the
patient. Like I have already discussed in the previous slide, they use the open-ended question. Why the open-ended question is important in the communication? Anybody can answer? Why you have to follow the open-ended question? Because like those patients will be already will have some they'll be difficult to communicate already. So if you're asking close-ended questions, they'll shut them down themselves. They'll not ask the further questions even if they wanted to. If you will ask the open-ended question, they will give a more information. Like that, you can ask the how many hours you have slept. So he will ask 8 hours. Then you can ask again why. Then they can ask the more about detail that yesterday night there was a lot of pain, which is not good for me, or I have not eaten food and like this. Then you can collect the more history about that. So always you have to follow the open-ended question. Okay. Then if you will ask the yes no type question, then you can got only single information. If you will ask the open-ended question, means you can collect the more information in a one question. So you have to always ask the open-ended question and encourage the patient to speak. Mean when the patient come to your OPD or in your setup, the many times we have seen the most of the time caregiver is answered like that. When I have asked to patient how's your pain, then caregiver is saying that it's traveling like, or it's like pricking pain. So caregiver is not feeling na. If patient is having nausea, so who will address the or who will address the right information? The patient will. So you have to encourage to speak to patient. Okay. And the next one is the repeat the information back back to patient for confirmation. You always have to acknowledge like that. You have tell me like this information. So आपको बार बार उसको उस पेशेंट से पूछ के कंफर्म करना है, मीन आपने ये बताया. ओके. Then use the empathetic statement when appropriate. We already discussed about the empathetic statement, or very important part in this communication. You have to use pauses like that when the patient is showing emotions like that. We already discussed in a starting, when patient is crying, so you have to not to stop them, you have to wait, because their emotions will be comes out. So you have to take always pause, or when you are giving the information, then they have to uh, recognize these kind of information, that when you are saying that the report is not good, or if you are giving the information in too much uh, uh, amount, so they will not collect in a single time. So you have to give a small information which you have to take many pause, then you can give the information. So always be honest about the information to be given. So जैसा कि we already discussed about in a previous slide, you have to give always realistic hope. मीन आपको हमेशा ट्रूथ ही बताना है, कभी कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन उनको नहीं बताना है. ठीक है. और ऑलवेज गिव रियलिस्टिक होप. These are the non-verbal do's you have to follow like that. These are all professionals you have to follow like that. Maintain eye to eye contact, or have a pleasant warm facial expression, and leaning forward will convey the message that I am listening. Mean when you are communicating with the patient and you are not actively participate in the communication like that, two patient is
talking about you, and you are busy in your cell phone, and you are not aware about that what they are saying to you. So it's not a good communication. Or respect the patient need for personal space, but also ensure the physical proximity. मीन आपको हमेशा पेशेंट जो हैं वहां पर उनकी क्या क्या नीड है उसके अकॉर्डिंग आपको उनको ऑप्शंस प्रोवाइड करने चाहिए. इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट जो पार्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लिसन or listening is a very important part in communication. You have to become a good listener firstly, then you will become a good communicator. मीन अगर आप जो भी इंफॉर्मेशन या पेशेंट जो भी आपको चीजें बता रहा है तो उसको बिना कुछ इंटरप्ट किए सारी चीजें आप उसको सुनिए, तभी वो चीज को आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि पेशेंट क्या कहना चाहता है. You mean in a palliative care, the patient or the doctor don't have enough time to discuss about the disease in a hospital because the communication is taking too much time in the OPD. So that's why you are the important part in the palliative care. You have to hear the information or the patient suffers. इफ कई बार जैसे पेशेंट को हम लोग बोलते हैं ना, डॉक्टर्स के पास गया लेकिन हमने ये चीज बोली लेकिन पेशेंट की डॉक्टर ने सुना ही नहीं, ये कुछ नहीं किया, वो नहीं किया, क्योंकि उनके पास एनफ टाइम नहीं होता. पेशेंट वांट टू टेल देम बट दे डोंट हैव एनफ टाइम टू हियर देम. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू हियर. ओके, सो ये जो पिक्चर आप लोग देख रहे हैं कि अगर आप कोई भी फॉल्स रिपोर्ट या पेशेंट की कम्युनिटी में कुछ झूठी अफवाह सुनाते तो किस तरीके से एक दूसरे से ट्रांसफर होके बात का बतंगड़ बन जाता है. तो हमेशा आपको जो भी इंफॉर्मेशन है वो सही से सही चीज बतानी चाहिए कि जैसे पेशेंट को ये डिजीज मीन कैंसर है तो आपको अप्रोप्रिएट मात्रा में उतना ही बताना चाहिए, नहीं तो वो चीज कहीं और बड़ी बन सकती है. लाइक दैट अभी पेशेंट को कोई डिजीज कैंसर है भी नहीं और आप उसकी रिपोर्ट अभी पेंडिंग है और पहले ही चीज बता देते हैं, तो आपको पता है एक पेशेंट जो है वो उसके केयर गिवर कुछ और जोड़ के बताता है, फिर उसका कोई और साथी होता है उसमें 3 बातें और जोड़ के बताता है और चौथा कुछ और जोड़ के बताता है. उससे उसकी कम्युनिटी में जो रेफर जो बनी हुई है वो एकदम से कम हो जाती है. तो इसलिए कम्युनिकेशन में आपको अच्छे से सारी इंफॉर्मेशन डिलीवर करना आना चाहिए. तो जितनी मात्रा में जितनी चीज बताई जाए उतना ही उनके साथ में शेयर करना चाहिए. ये एक पिक्चर है जैसे कि हाई स्पीड डेटा ट्रांसफर, किस तरीके से वो इतना स्पीडली जब आप कोई चीज जैसे सोशल मीडिया में वगैरह देखते हैं किस तरीके से वो वायरल हो जाती है, तो उसी तरीके से आप लोग अगर गलत चीज भी बताते हैं तो वो किस तरीके से पूरी कम्युनिटी में स्प्रेड हो जाती है. चलिए, जो अभी अपन ने सबसे पहले जो केस डिस्कस किया था फर्स्ट स्लाइड में उसकी तरफ आते हैं. किसी को याद है? हेलो हेलो, You are audible. we have discussed in a first slide. Anybody aware about that? Yes, yes. Yes, sir. हाँ, Dr. Umesh That ji is, already yeah. know about the Yes. case scenario. Mrs. So please answer. Mrs. K was suffering breast cancer with metastasis. The question is whether to tell this to the patient or not. That is a confusion. And if told, what will happen? Who will answer? So, sir, you can give your opinion. What you will do? In the first visit, just I
I meet and know the case Hmm. and prescribe the medicine. Hmm. And after 2-3 visits, when I build a rapport, Hmm. at that time I ask her only, Hmm. what you know about your disease and condition, what your oncologist has said. Hmm. Like this, I'll make aware of herself about condition, Hmm. because she should not feel ki they are doing so much treatment and I'm not getting cured. Hmm. That is, this is what major issue in palliative, So making the bad news. I want to answer from volunteer side. Anybody can answer what you will do. I think she should know about her diagnosis. The doctor or whoever delivering the message should make sure she's in the right mind, or she's at least in the minimum mental state to receive the news. But she should know about her condition, because she should have a say in about her future, like whether she should continue with the treatment. She should have to, go for the alternative treatments or palliative care, whatever it is. She should have a say in this. A control should be there in her hands, rather than everybody else around her is taking decisions for her and asking her what she wants. So I should say she should know about her diagnosis. Okay. But her husband is refused. But she is not refused, na? So what you will do? Okay. You know, in this case scenario, Mrs. K is a teacher, I think. Yes. So if you will not tell them, she is also well educated, na? She can read the prescription form or paper. She can also Google. Then she can got information from. Sir, if she is well educated, then we have to explain her what is the situation very positively and make her prepared for the further diagnosis, what kind of she would like to take. Mm. Because if not educated, then we can take the time and slowly and steadily go into it. But she is educated, she can understand the report, then we have to mentally prepare her. Naturally, initially she will be devastated, but slowly and steadily the acceptance will come. So she will understand. Yeah. She can She take will the decision, understand. she can consult, she can speak to the people. कल मैं गया था इमरजेंसी में रात को. So there is a protocol एक से 6 बजे तक when you are giving breaking bad news. There is a protocol, so it's a very advanced communication. So you have to follow the spike protocol. There is a spike protocol where you have to uh, make a setting, or you have to call the family meeting. If the patient is want to know about the diagnosis, then you have to tell them. You have to ask to the patient, you want to know your diagnosis. If the patient is saying that yes, I want to know, then you have to tell them in giving a warning shot only. Then you can take a pause, or you can stop your communication there. Or when the patient is very good mental status, then he come to you, I want to know my diagnosis, then you can ask them. So you have to follow the strict the protocol, then you can give the information about the diagnosis. And she is worried about that, because she have a 10-year and 6-year-old two child. What will happen in future with them, because she is in an advanced metastatic carcinoma. So what you will do for these kids? Anybody can tell? Hello? Anybody want to add on? Okay. So you're asking like what we'll do about those kids, or yeah, kids. okay, maybe we'll discuss with the husband, and
have a like counseling session or something like that with the husband and bring up a plan. If something happens to her, we'll, to give her a sense of peace that if something happens to her, that the children will be taken care of well taken care of by the husband and other family members. To show the support, we'll discuss with the other family members and they'll come together and give her all the support and peace of mind that if something happens to her, the children will be well taken care of. Yeah. When you will assure to her your kids in a safe hand, then she will be not worried. If you will, when you will call the family meeting, then you have to take a family, you have to make a family tree. So who is a favorable caregiver to take care of the kids? Then if you have to talk with the caregiver, these kids is very small, you have to take care of them, then she will be not worried, because she is very worried about the future of the kids, na? So you have to tell them, you don't worry, the take care of these kids will be do by this. So she will be not worried. Then you can give the information and you can tell about the making of the will. Okay. So these things you have to address them, because you already know that palliative care, we are not addressing only the patient, we are addressing the caregiver and family also. Okay. Thank you. Yes. If you have any doubts regarding the session, you can ask now. Or if you wish to convey anything, that also you can do. Is there anything anyone? Yes, I'd Sneha, like please. to ask something. Yeah. So I don't know if something you can answer, not as related to this. So is there a rule saying anything like there should be a social service person or somebody who can handle such type of things should be present while delivering a news to a person or a parent about their child or a family member having some incurable diseases like final stage cancer or something like that. If there is rule regarding that, in hospital there should be a person present to support the caregivers. No, ma'am, there is no rule about that. But when you are giving the information to the caregiver or the family, there should be a family meeting, in interdisciplinary team meeting, where I already discussed in the starting. If you are giving the options of like that, the social worker opinion is that, and the oncosurgeon opinion is that, and medical oncology opinion is that, so you can deliver the information. So you cannot give the alone information, because they will not trust na, because like that the volunteers or the health caregivers who have not enough knowledge regarding the medical things, like that we are the palliative care physician, we cannot uh, stop the treatment, because we are giving only the supporting treatment. So you can ask them, you can start the primary physician treatment, we will give the simultaneously our treatment for symptomatic management. Okay. Thank you. Yeah. So I'm not sure if I'm allowed to share a personal like experience here, but if that's allowed. Yes, please. What? As Yeah. you would like to share your So personal I'd like to Yeah, experience. yeah, share a yeah, yeah, personal yeah, yeah, experience. yeah, you can. Yeah, so last month, by last December 2023, my daughter is diagnosed. My 22-month-old daughter is diagnosed with a who recognized fourth grade cancer called ATRT.
a typical teratoid raboid tumor. So it's a sort of like incurable in India. So I got the news from RCC here in Trivandrum. We did the surgery and we got the biopsy results, and we did our share of research about the stuff, but we were not sure about the prognosis and how like survival rate and such. So we went to RCC, and me and my husband and my daughter, like 22-month daughter, was with us. She was very active and such, and right away we got into the hospital, and they collected all the documents, and we were in the doctor's office, and within 5 minutes they brought the news that your daughter, the 22-month daughter, is not going to survive. She Oh, will maybe die within she gets to she gets to 3 years old, she'll die, and she's not going to survive. And we didn't get any counseling, we didn't get any social support or whatever it is. We are two young parents, and I'm 32 years old, and she's my only child. And after they brought the news, they said, okay, we can go. We'll try the treatment. We'll try just for the sake of the treatment. We'll try the treatment, and they just send us home. Okay, you can go, and the nurse came and gave us a bunch of papers to do all the blood tests and etc. etc. And they sent us home. Okay, so that was a very devastating thing, and unfortunately, the thing was right. Like what they said was right. Unfortunately, she passed away February 20th. It's only been 2 weeks. Okay, so it was a very really bad experience. The thing is that what they said was right. It is a very bad prognosis. The disease, it was very bad prognosis and such. But the way they brought the news and the zero support we got from there, and they don't even care about, they didn't even give us a space to burst out or settle down or whatever it is. We didn't get a space. So the first thought came to my mind after that was to go to the top of the building and jump from that. oh, So I'm thanking myself that I didn't do that time. But I'm scared about the future parents who are coming there, who are yet to come there. I wish nobody has to go through that, but I'm scared about it. It's a big hospital here, and a lot of middle class people and low class people are financially low class people are depending hospital, and yeah, it was a very bad experience. I think there should be a rule where when a doctor broke such a news to a caregiver, there should be social support. Social worker support there to handle us or to take care of us at least for some time. yes. That's why the palliative care is now recently introduced, because the most of the oncologists or the other surgeons, they are breaking the news like that. So in our palliative care scenario, we are not doing like that. We have to call the family meeting, then we have to give the warning shot, and then you can give the information like that. So you are saying that this is a very worse uh, experience of that. So I'm sorry for that, but now you are here, you will be justice for next coming patients. Yes, I'm trying to. Like that's why So it's it's been a only 2 weeks. it's a advanced communication. So when you will take the more training, then we will train more in a communication. It's just Okay. introduction about the communication. So it's like I already mentioned, we have to follow the spike protocol, where we have to follow these steps, then you can break the bad news. Yes, yes, yes. Thank you. Is there anyone who want to ask questions or share their feedback? Sangeet, can I say something? Yeah, sure. Yeah. Okay. Good evening, everybody. And
just now, Sneha ji shared her experience. So I'm very, like, I mean, I want to, appreciate that she shared with all of us. And yeah, that is the reason, as you can see, we have especially a training for the volunteers, So, and as Sir was saying that this is a multidisciplinary team where a doctor, a nurse, and a social worker or a counselor, it is a mandatory that this group consists of these three people and who are trained in palliative care. And like we are also entertaining the volunteers because as we understand, being in a society, we also as an individual, even if we are not from the medical background, we also have some role to play. So that is why we are trying to, spread this buzzword through this kind of trainings, that every person, each and every person, or at least one in each family should know about it, so that we are well prepared. So just now, Sneha ji was sharing. So had she known, maybe she would have contacted some of the nearby palliative care center who does some counseling work. So at least now, at least whoever are there in this training session will not miss it. They will understand, they'll remember, at least if not for them, for at least their neighbors or relatives. So that is the reason we have been specially, trying to reach people through this kind of training. So I'm very glad that you shared. And maybe in due course, we'll be meeting till Friday. So all of you can share whatever good, bad experience you have. I think there's a platform free for all. So you're free to share. Thank you very much. Thank you, Sunanda, for Thank that. you. If there is no session, sir, we can wind up. Yes, sir. Oh, okay, thank you, thank you. Thank you Mr. for Jagadish, for the wonderful joining. presentation. Thank you very much for. Thank you everyone for presenting. Thank you, Sunanda, for facilitating the session. Thank you everyone. Thank you, Sneha, for Thank you. sharing your experience. Thank you. Thank you all. Take care. Bye bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye.